Hello everyone. Today we are going to discuss class 9 history, second chapter, and the title of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. इस चैप्टर को सुविधा के लिए हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होगा सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा पार्ट होगा द रशियन रिवॉल्यूशन। Why the chapter has been named as such? इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 को हम लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। एंड बोल्शेविक्स वर लेड बाय व्लादिमीर लेनिन। Lenin was influenced by the ideas of Karl Marx, father of socialism. So, after the success of revolution, he had a dream. Lenin had a dream to establish Russia as the first socialist country in the world, the first socialist nation state in the world. और इसीलिए इस चैप्टर को नाम दिया गया सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप से सोशलिज्म कैसे अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग डायरेक्शन से रशिया तक पहुंचा, एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। और रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ अगेंस्ट द देन किंग जार निकोलस सेकंड। अब सवाल यह है कि इस चैप्टर को हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों बनाया गया? बिकॉज फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया हैज बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, आइडियाज ऑफ व्लादिमीर लेनिन। इसलिए हमें इसे पढ़ना है और यह हमारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है। एक और बात है यहां जिसके कारण इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को जानना है, सोशलिज्म को और रशियन रिवॉल्यूशन को। वो ये है कि हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी है और जिन लोगों ने ये कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, सीपीआई 1925, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी, इसको बनाने में जिन लीडर्स का रोल रहा वो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से, फिलॉसफी ऑफ लेनिन से, फिलॉसफी ऑफ कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इस तरह से हमें इस चैप्टर को समझना ज्यादा जरूरी लगता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। Socialism in Europe and the Russian Revolution. When we analyze the revolution of 1789 against Louis XVI of Bourbon dynasty, then we find that revolution made some ideologies very popular in different empires in Europe. And the ideologies were equality, liberty, fraternity, democracy, nation states, fundamental rights, or you can say rights of the citizens. इन आइडियोलॉजीज ने यूरोप के लगभग सभी एम्पायर्स को इन्फ्लुएंस किया। किसी एम्पायर के लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, किसी एम्पायर के लोग थोड़ा कम इन्फ्लुएंस हुए। हां, लेकिन एक बात तो रही कि लोग इन्फ्लुएंस तो हुए, यह बात पक्की रही। अब इसी इन्फ्लुएंस का नतीजा था कि धीरे धीरे सोशलिज्म
पॉपुलर हुआ, क्योंकि सोशलिज्म का एक ही आइडियोलॉजी था, एक ही एम था, एक ही ऑब्जेक्टिव था, और वो था कि सोसाइटी के हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए। इसी सोशलिस्ट आइडिया ने, इसी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ने, यानी सोशलिज्म ने रोमानो डायनेस्टी के किंगडम, रशियन किंगडम को भी इन्फ्लुएंस किया। यहां के भी कई लोग मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हुए, और जो लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए उनमें से सबसे फेमस पर्सनालिटी था व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ऑर्गेनाइज्ड the followers of Marx. Lenin mobilized the followers of Karl Marx for the revolution against Tsar Nicholas II of Romanov dynasty. It was a Bolshevik revolution. It was a Leninist revolution. It was a Marxist revolution. It was a Red Revolution. It was the Russian Revolution of 1917. And this revolution overthrew the Romanov dynasty and established Russia as the first socialist country in the entire world. When we see the French society during the old regime, it was divided into 3 states. The first state, the clergy; the second state, the nobility; the third state, remaining all. The first and the second states, the clergy and the nobility, they were having all privileges by birth. But the third state people, they were not having any special privileges. Rather, they were required to perform all the duties towards the kingdom, towards the church. And this was the reason revolution occurred in 1789 against Louis XVI of Bourbon dynasty. The absolute monarchy was overthrown, and a new constitution was introduced. Gradually, France became a constitutional monarchy, and then a republic. We find that after the revolution of 1789, a new concept of society emerged, a new concept of economy emerged, and a new concept of politics also emerged. Different people had different opinions. Different opinions regarding what? Regarding economy, regarding politics, regarding society, regarding changes, regarding nation. After the revolution के बाद अलग अलग इंडिविजुअल का ओपिनियन अलग अलग था फ्रांस में। किस बारे में भाई? इस बारे में कि सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए। इस बात से हमें पता चलता है कि 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल चेंजेस आए, यानी 1800 से 1899 के बीच में जो पॉलिटिकल चेंजेस आए, उन्होंने पूरे यूरोप को काफी प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस्ड किया। लेकिन 1917 में जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, उसने तो पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि यह अपने तरह का पहला रिवॉल्यूशन था। इट वॉज द फर्स्ट मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। संसार का पहला समाजवादी
क्रांति, संसार की पहली क्रांति जिसमें समाज के एक एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दिया गया था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया, socialism restructured economy, restructured politics, and restructured society in Russia and in Europe gradually, and further in entire world gradually. 1917 के बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने पहले तो रशिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को, फिर पूरे यूरोप के पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी को, और फिर पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करने का काम किया। लेकिन ये रीस्ट्रक्चर करने का काम रशियन रिवॉल्यूशन ने, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने, मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 ने कैसे किया, थोड़ा इस पे हम लोग नजर डालते हैं। तो 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर 1917 के बोल्शेविक रिवॉल्यूशन तक हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यह पाते हैं कि यूरोप की किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एम्पायर की सोसाइटी में, किसी भी किंगडम की सोसाइटी में 3 तरह के लोग थे: लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स थे, रैडिकल्स थे और कंजर्वेटिव्स थे। मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोग के लिए एक बार फिर से। लिबरल्स थे, रैडिकल्स थे और कंजर्वेटिव्स थे। अब हम एक एक करके लिबरल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, रैडिकल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे और कंजर्वेटिव्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लिबरल्स के बारे में बात करते हैं तो यह पाते हैं कि लिबरल्स वर टॉलरेंट एज फार एज रिलीजियस मैटर्स वर कंसर्न। धार्मिक मामलों में जो लिबरल लोग थे, उदारवादी लोग थे, वो थोड़ा सहिष्णु थे, थोड़ा सा उदार विचार रखते थे, सहनशीलता रखते थे। मतलब दूसरे रिलीजन्स के प्रति भी रेस्पेक्ट का भाव रखना चाहते थे, रखते भी थे। पार्लियामेंट्री फिलॉसफी को ये प्रमोट करना चाहते थे। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी ये चाहते थे, लेकिन सभी फील्ड में नहीं। मैं आऊंगा इस बात पर। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को ये बहुत अच्छा मानते थे। इनका मानना था कि ये मिलना चाहिए। पॉलिटिकल लिबर्टी और पॉपुलर सोवरेनिटी के भी फेवर में ये लोग थे। सोवरेनिटी आप लोग जानते हैं, व्हेन द स्टेट इज एक्सटर्नली एब्सोल्युटली फ्री but internally it is controlled by the people of the state, then it's sovereign. किसी भी सरकार के ऊपर कोई बाहरी कंट्रोल अगर नहीं हो, वो सिर्फ उन लोगों से कंट्रोल होती हो या बदली जाती हो जिनके ऊपर वो शासन करती है, तो इसको हम लोग सोवरेन बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के डेट में बाहर के किसी एलिमेंट से कंट्रोल नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज चेंज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, सो इट इज सोवरेन। तो पॉलिटिकल लिबर्टी और पॉपुलर सोवरेनिटी, इसके फेवर में लिबरल लोग थे। लेकिन एक थोड़ी सी निराशा वाली बात भी थी। दे वर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग वोटिंग राइट्स टू वुमेन। इससे एक बात रिफ्लेक्ट होती है
कि लिबरल्स में बाकी चीजें तो सही थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं कर रहे थे। अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बिलीव करते तो विमेन को भी वोटिंग राइट देने की बात करते। तो ये रहा किसके बारे में? लिबरल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं रैडिकल्स के बारे में। रैडिकल्स लोग चाहते थे कि नेशन की जो गवर्नमेंट बने वो नेशन के पॉपुलेशन से बने, यानी नेशन का पॉपुलेशन ही अपनी गवर्नमेंट बनाए, और ये गवर्नमेंट पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। रैडिकल्स लोग जो थे वो स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को भी देने के अगेंस्ट में थे। उनका कहना था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो प्रॉपर्टी मैन हैं, उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। लैंडलॉर्ड्स को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। हां, एक बात थी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके वो फेवर में थे। बट दे वर टोटली अगेंस्ट concentration of property in very few hands. प्राइवेट प्रॉपर्टी की राइट हो, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होके रह जाए, ऐसा उनका मानना था। किसका? रैडिकल्स का। एक अच्छी बात थी यहां पे और वो ये थी कि रैडिकल्स वर इन फेवर ऑफ इक्वल वोटिंग राइट्स टू विमेन. It means they believed in the universal adult suffrage. It means they believed in the democratic values. It means they were feminist. Who are called feminist? Those who advocate equal rights to men and women. और आप ऐसा कह सकते हैं कि समाज के वैसे लोग, सोसाइटी के वैसे लोग जो महिलाओं को पुरुषों के समान, फीमेल को मेल के समान राइट्स और प्रिविलेजेस देने के फेवर में बात करते थे, मूवमेंट चलाते थे, फेमिनिस्ट कहे जाते थे। तो रैडिकल्स लोग भी फेमिनिस्ट थे। रैडिकल्स वर अगेंस्ट the special privileges to the landlords. Radicals were against the special privileges to the factory owners. अब हम थोड़ी बात करते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव लोग 18th सेंचुरी में ओल्ड रेजाइम के फेवर में थे, ओल्ड रेजाइम की बातें करते थे। बट 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही यही कंजर्वेटिव लोग बात करने लगे ओल्ड रेजाइम के सिस्टम के अपोजिट, उसके अगेंस्ट में ओल्ड रेजाइम के पैटर्न को वो बायकॉट करने लगे, विरोध करने लगे। उनका मानना था कि सम चेंजेस वर इनएविटेबल, कुछ चीजें बदलनी थी और यह जरूरी था, एंड दैट इज वाई दे वर रेडी फॉर सम चेंजेस विच वर इनएविटेबल इन द सोसाइटी, इन द पॉलिटिक्स, इन द इकोनॉमी। पास्ट को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, बट जो चेंजेस इनएविटेबल हो उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। याद रखना है, ऐसा बिलीफ कंजर्वेटिव्स का 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। उसके पहले तो वो किसी भी चेंज के लिए तैयार नहीं होते थे। दे वर ऑलवेज एंड इन फेवर ऑफ रेस्पेक्टिंग द पास्ट ओनली। हां, एक और बात थी, जब वो ये कहते थे
कि इनएविटेबल चेंजेस शुड बी एक्सेप्टेड, तो वहां उनका मतलब यह होता था कि चेंजेस शुड बी एक्सेप्टेड, चेंजेस शुड बी ब्रॉट, बट नॉट सडनली, ग्रेजुअली. It means they wanted two things: respect the past, but be ready to accept the inevitable changes on gradual basis. आप अपने बीते हुए समय का रेस्पेक्ट करो, लेकिन जो जरूरी बदलाव हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, उसके लिए भी तैयार रहो. हां, एक बात है, ये चेंजेस अचानक मत लाओ, धीरे धीरे लाओ. ऐसा वो मानते थे. We understood the three ideologies: the liberals, the radicals, and the conservatives. And by understanding these three ideologies, we come to a conclusion that in the 19th century, the liberals, the radicals, and the conservatives clashed against one another. एक दूसरे के खिलाफ ये प्रचार करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ ये बातें करते रहे, अपने को सुपीरियर और बाकियों को इंफीरियर बताते रहे. इनके इसी कॉन्फ्लिक्ट से पब्लिक के मन में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि आने वाले समय में चेंजेस तो दिखेंगे, सोसाइटी में भी, पॉलिटिक्स में भी और इकोनॉमी में भी. अब बात यह थी कि जो चेंजेस अपीयर होने वाले थे, जो चेंजेस प्रोबेबल थे, जो चेंजेस संभावित थे, उनका पोटेंशियल क्या होगा, उनका ट्रेंड क्या होगा, यह पब्लिक के लिए एक इंटरेस्ट की बात थी. Attempts were made for revolution, attempts were made for national reformation, national reconstruction in different parts of Europe. ये जो इनके आपसी संघर्ष हुए, इनसे एक संकेत मिला, एक सिग्नल मिला कि आने वाले समय में नई इकोनॉमी, नया पॉलिटिक्स, नई सोसाइटी की संभावना बन रही है. ये सब बातें हम लोग कैसे जाने? ये जाना हमने इन तीनों आइडियोलॉजीज को समझ करके. कौन सी तीनों आइडियोलॉजीज? द लिबरल्स, द रैडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स. द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज. Now we are going to discuss this topic. The Industrial Revolution started first in England, and it started around 1740s. It continued up to 1880s. The Industrial Revolution started first in England, but with cotton and textile industry. And it is agro-based industry because it gets raw material from agriculture. Cotton is agricultural product. All of us know that. हम सब लोग ये बात जानते हैं. So the entire industrial revolution period is divided into two parts. The first half was agro-based industries. The second part was mineral-based industries. In the agro-based industries part or phase, cotton and textile industry was the main industry. But in the later part, the second phase, mineral-based industries phase, iron and steel industry was the main industry. It became the main industry. It became the backbone of all industries. You can say. We can say. हम बोल सकते हैं ऐसा. ठीक है. तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ इंग्लैंड में, तो मेन मनी, मटेरियल, मार्केट, मशीन्स, इनके डिमांड काफी तेजी के साथ बढ़े. हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ बढ़ा. इंडस्ट्रियलिस्ट
वो बने जो कैपिटलिस्ट थे, जिनके पास कैपिटल था, वही इंडस्ट्रियलिस्ट बने। उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, या कुल मिला के कहें तो अपने प्रॉफिट के लिए, एक फॉर्मूला अपना लिया कि मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। वर्कर से इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा काम कराना, उनको कम से कम वेजेस देना, वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव नहीं करना, वर्क प्लेस को इंप्रूव नहीं करना, ये बहुत सारे बातें थी। अगर हम गौर करें तो एक चीज पाते हैं, वो क्या भाई? वो ये कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय लिबरल्स एंड रैडिकल्स। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज के मालिक लिबरल थे या रैडिकल लोग थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव था कम से कम खर्चा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। ये तो था, इसलिए वो वर्कर्स को कुछ देना नहीं चाहते थे, सारा प्रॉफिट अपनी जेब में। लेकिन धीरे धीरे विथ टाइम दे ऑल्सो रियलाइज्ड, आई मीन द फैक्ट्री ओनर्स, आई मीन द इंडस्ट्रियलिस्ट, I mean the radicals and the liberals, factory owners, they also realized, उन लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि वर्कर्स के कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है मतलब द वर्कर्स यूनाइट हो सकते हैं, मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रोसेशन कर सकते हैं, मशीनों को तोड़ फोड़ कर सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ रही थी। अब ये जितने भी लिबरल्स थे, जितने भी नेशनलिस्ट्स थे, जितने भी रैडिकल्स थे, ये सब लोग चाहते थे कि वर्कर्स के कंडीशन में इंप्रूवमेंट आए, इसके लिए कोई मूवमेंट चले, इसके लिए कोई बात इनिशिएट हो। और यही लोग, आई मीन लिबरल्स, रैडिकल्स एंड नेशनलिस्ट्स, they were totally against the despotic rulers, the despotic dynastic rulers. The liberals, the radicals and the nationalists, these groups followed the path of revolution, followed the path of revolutionary measures against the despotic rulers in Europe. And the best example is Giuseppe Mazzini in Italy, the coming of socialism in Europe. This is the topic we are going to discuss now. सोशलिज्म यूरोप कैसे आया? हम सब लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स सोशलिज्म का फादर कहा जाता है। उसने एक बुक लिखी, दास कैपिटल, जर्मन लैंग्वेज में। द कैपिटल इंग्लिश में ये अवेलेबल है। और उसने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट एवरीथिंग टू गेट। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है और पाने को सब कुछ है। बस मजदूरों में यूनिटी आ गई, वर्कर्स यूनियंस वर फॉर्म्ड, अ रिएक्शन स्टार्टेड अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड सोशलिज्म. So, socialism is a reaction against capitalism. Against the capitalists, the workers, the peasants started their movements. The workers against the industrialists, the factory owners, and the peasants and farmers against the landlords. Farmers and workers got united against the landlords and the industrialists. They wanted some facilities. They wanted better living conditions. They wanted the working hours to be reduced. They wanted better wages and better workplace. It means socialism was a radical idea, a revolutionary idea.
And it was, as I told you, a reaction against the concept of private property, a reaction against capitalism. They wanted to abolish the system of private property. They wanted everything to be owned by the society. सोशलिज्म को मानने वाले लोग चाहते थे कि कंट्री की इकोनॉमी को रेगुलेट करने का काम, ऑपरेट करने का काम कोई इंडिविजुअल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट करेगा। और स्टेट का एक एलिमेंट है गवर्नमेंट, आप लोग जानते हैं, इट मींस गवर्नमेंट करेगी। सोशलिज्म प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलेगा। सोशलिज्म चलेगा किससे? वेलफेयर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी। समाज के हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, इस प्रिंसिपल पे सोशलिज्म चलेगा। ऐसा मानते थे सोशलिस्ट फिलोसोफर्स, राइटर्स, थिंकर्स। एक तरफ कैपिटलिस्ट लोग थे जिनका एम था मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरी तरफ सोशलिस्ट लोग थे जिनका एम था वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी, आई मीन ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, नॉट ओनली प्रॉपर्टीड मैन। आई होप नाउ इट्स क्लियर। सोशलिज्म, a reaction against capitalism.